of cooling. By cooling you mean there will be decrease in temperature or there will be loss of heat by the body. Okay, body is being cooled means temperature is falling, or you can say body is losing heat. Okay, so how much heat body can lose in a given time depends upon the nature of the body. Number one, the surrounding temperature. जैसे ठंड है, ठंड में आप इधर किचन में चाय बनाते हैं, इधर सर्व करते हैं, इतने में आते आते ठंडी हो जाती है, ये कूलिंग हो गई. गर्म हॉट कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ कॉफ़ी आपने ली और बड़ी जल्दी सर्दी के मौसम में ठंडी हो गई, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कूलिंग फास्ट होएगी. ओके, तो बिफोर वी टेक अप Newton's law of cooling, one concept which is required to be used in defining Newton's law of cooling, that is the amount of heat gained by a substance or lost by a substance depends upon the mass of the body, specific heat and change in temperature. We want to change the temperature. Cooling is by a very small amount. You give small time for cooling, then there will be small amount of heat lost and there will be small change or decrease in its temperature. Okay, so dt is the change in temperature, fall in temperature when the body will lose dq amount of heat. Got my point? M is the mass of the substance which is losing heat and C is related to its nature. It is specific heat. You know the concept of specific heat. Amount of heat required to change the temperature of unit mass by 1 degree without changing the state. Okay, आपको पता है हीट दो काम करती है, चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर. यहाँ कूलिंग करनी है तो देयर विल बी चेंज ऑफ टेम्परेचर ओनली. कूलिंग में हम फ्रीजिंग नहीं चाहते. वी डोंट वांट टू चेंज द स्टेट. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से कि कोई हॉट लिक्विड है और आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दो सराउंडिंग में, और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन hot body and the surrounding will decide how fast body is losing heat, how quickly the body is being cooled. Okay, but how much heat is lost or how much heat is gained will be decided by these three factors: changing temperatures, specific heat, and the mass of the substance. Clear? So what is the law? Newton's law of cooling. So by cooling you will mean decrease in temperature. By cooling you will mean the body or the substance is losing heat. Okay, so if you take any hot liquid, maybe hot coffee or maybe hot cup of tea or milk or simple water even, okay, and then put thermometer in this, and record time and the change in temperature. इस टाइम पर कितना टेम्परेचर था, कितने टाइम के बाद कितना टेम्परेचर कम हो गया. मैथमेटिकली रेट ऑफ कूलिंग मीन्स हाउ मच हीट इज लॉस्ट पर सेकेंड. अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकेंड बाय हॉट बॉडी is rate of cooling. You can write this like this: dq by dt. This is the rate of cooling. And sometimes we put minus sign over here. Why? Because body is losing heat. Temperature is falling. With the passage of time, amount of heat is being lost by the hot body. तो यहाँ माइनस भी लगा देते हैं. ओके, अदर मेथड टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ कूलिंग इज व्हाट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर पर सेकेंड. दिस इज आल्सो रेट ऑफ कूलिंग. इट इज फॉल इन टेम्परेचर पर सेकेंड. Okay,
fall in temperature per second, decrease in temperature per second. So you decide a time interval. After every 1 minute or 2 minutes, you are to record the temperature, just to see how quickly or how slow the body is being cooled. Okay? कितना क्विकली बॉडी हीट लूज करेगी या कितना जल्दी टेम्परेचर फॉल करेगा या कितनी जल्दी बॉडी ठंडी हो जाएगी, वो इन दो चीज़ों से पता लगेगा. रेट ऑफ कूलिंग मीन्स हाउ मच हीट इज लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी पर सेकेंड. ओके, अगर वो ज़्यादा हीट लूज कर रही है पर सेकेंड तो कूलिंग जल्दी हो जाएगी. और दूसरा फॉल इन टेम्परेचर पर सेकेंड, कि हर एक जो भी टाइम इंटरवल आपने लिया है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकेंड. ओके, तो वो ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर पर जो भी आपने टाइम इंटरवल डिसाइड किया. टाइम इंटरवल आप चाहे 5 मिनट लेते हैं, मान लो 75 डिग्री पे रिकॉर्ड था और आपने क्या देखा कि 75 से 65 डिग्री टेम्परेचर इसका हो गया आफ्टर 5 मिनट. कूलिंग हो रही है. 75 डिग्री टेम्परेचर आपने इनिशियली रिकॉर्ड किया, 5 मिनट के बाद देखा कि टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 75 टू 65. तो व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग? द फॉल इन टेम्परेचर 10 डिग्री and time interval 5 minutes, 2 degree per minute. Got my point? Which formula you have applied? This or this. Did he change in temperature? 75 to 65 means 10 degree and time interval is 5 minutes. Rate of cooling is 2 degree per minute. Okay? Or if you can record amount of heat lost, जब टेम्परेचर 75 to 65 हुआ तो कितने कैलोरी हीट लूज की, फिर यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला टू फाइंड आउट रेट ऑफ कूलिंग. ओके, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. इट स्टेट्स that the rate of cooling dt by dt directly proportional to the rate of cooling dt by dt, change in temperature per second or per unit time or per time interval which you have decided. Directly proportional to change in time? नहीं, directly proportional to difference in the temperature between the hot body and the surrounding. Okay, when you keep a cup of tea, hot cup of tea, surrounding is your room. Okay, so room temperature you will take T naught. T naught is temperature of the surrounding. Now the question is, this T is temperature of the liquid which is losing heat, but temperature is continuously with the passage of time decreasing. So which temperature this will be? If this is T1, this is T2, then this T will be average of these two. क्योंकि टेम्परेचर स्टेबल नहीं है, बॉडी इज कंटिन्यूसली लूजिंग हीट. देयर इज ए कंटिन्यूस फॉल इन टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो आप लिक्विड का टेम्परेचर कौन सा लेंगे? इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर, या आपने देखा कि 75 to 65 डिग्री टेम्परेचर फॉल कर गया 5 मिनट में. ओके, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स है. मान लीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेट अस सपोज 30 डिग्री सेल्सियस. और ठंड का मौसम है तो आज आपको टेम्परेचर सराउंडिंग का रूम का 10 डिग्री, 10 to 15 मिल जाएगा. और थोड़ा सनी भी रहा. ओके, आप आदमपुर में है या लेह लद्दाख में या शिमला में माइनस में चला जाता है रूम टेम्परेचर सराउंडिंग का.
ओके। और वहाँ अगर आप हॉट कप रखते हैं, हॉट कप ऑफ टी, और शिमला में स्नोफॉल हुआ है, रेट ऑफ कूलिंग बड़े फास्ट होएगी, जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी, बॉडी विल लूज हीट क्विकली, रेट ऑफ cooling will be fast. But generally, if you take a, I told you, if you take a liquid, hot liquid, say hot cup of tea, and the thermometer is recording the temperature. After every 5 minutes, we observe temperature has gone down from 75 to 60 degree in 5 minutes. Okay. And temperature of the surrounding 30 degree. And Newton's laws of cooling says the rate of cooling, these are these. ये दोनों rate of cooling है. How much heat is lost by the hot body per second, or how much is the fall in temperature per second. Okay, ये भी rate of cooling है, ये भी rate of cooling है. The Newton said the rate of cooling is directly proportional to temperature difference between the hot substance and the surrounding. Okay, and now the question is, this is the temperature of the surrounding, and surrounding is atmosphere. If you are taking enjoy a cup of tea outside, तो सारा बाकी जो भी एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ है वो सारी सराउंडिंग है. अगर आप रूम में है तो फिर रूम आपका सराउंडिंग है, ठीक. और आप चाहे 500 बंदे चाय कप पी रहे हैं, हर एक कप का हीट लॉस हो रहा है और वो ठंडा हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक. लेकिन चाय का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, सराउंडिंग का नहीं हो रहा. सराउंडिंग की जो थर्मल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है. सराउंडिंग का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना बड़ा मुश्किल है. उसकी थर्मल कैपेसिटी है कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा. तो वी कैन सपोज दैट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कूलिंग. तो ये हमें फिक्स ही रहेंगी. अब न्यूटन ने कह दिया रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. पहली बात, ये जो टेम्परेचर दिया गया ये एब्सोल्यूट केल्विन में लिया गया, कैपिटल टी है ना. ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, और ये जो टेम्परेचर है ये मीन टेम्परेचर है. ये बॉडी जैसे 5 मिनट्स में 75 to 65 डिग्री टेम्परेचर डाउन कर गई है, तो आप टेम्परेचर ऑफ द हॉट लिक्विड ये लेंगे कि ये लेंगे, टाइम इंटरवल तो 5 मिनट ले लिया, लेकिन ये जो दो टेम्परेचर है यहाँ से यहाँ फॉलिंग हुई तो इनका मीन निकाल लेंगे. तो वो टेम्परेचर यहाँ जो भी आएगा 75 + 65, दिस विल बी 75 + 65 डिवाइडेड बाय 2. ये सेल्सियस में, इसके केल्विन बनाने पड़ेंगे. ओके, 273 इधर भी ऐड होना है, 270 इधर भी ऐड होगा. गट माई पॉइंट. और अगर आप सेल्सियस में लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको केल्विन में दिया है तो 273 माइनस कर दो, सेल्सियस में आ जाएगा. ओके, तो टेम्परेचर इन केल्विन एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस रिलेशन. You add 273 to temperature in Celsius, you will get temperature in Kelvin. ठीक है, तो you can convert degree Celsius into Kelvin and vice versa. So here, if you put a constant, that will be K, that will be T minus T naught over here. Now you can put माइनस साइन ओवर here, रेट ऑफ कूलिंग. टेम्परेचर गिर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम इसको माइनस से डिनोट करते हैं. तो ये माइनस इधर या इधर ट्रांसफर कर दो, नो प्रॉब्लम. ओके, नो दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन. dt by dt, टेम्परेचर इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. dy by dx होता है जैसे pt by dt है. इसमें 2 वेरिएबल है, एक टाइम जो स्टेबल नहीं है और एक टेम्परेचर जो गिरता जा रहा है. 2 वेरिएबल है. तो ये
डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए जो दो वेरिएबल है उनको सेपरेट करना। जैसे ये डी टी डिवाइडेड बाय दिस टी माइनस टी नॉट, एक तरफ ले आओ माइनस के इंटू डी टी। के तो कॉन्स्टेंट है, यू कैन पुट द कॉन्स्टेंट ऑन आइदर ऑफ द टू साइड्स। कॉन्स्टेंट राइट साइड में रखो या लेफ्ट में रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो दो वेरिएबल है उनको सेपरेट कर दो। ओके, देन यू इंटीग्रेट। When T was 0, means in the beginning, temperature was T, आप T1 ले लो, it was T1 in the beginning, this is T1, after 5 minutes, temperature change हो गया, कम हो गया, उसको T2 ले लो, temperature varies during cooling, varies from T1 to T2. Okay, and integration of this side is log of T minus T naught, natural log, and on this side it is minus K, integral of dt is T, then you can have a constant of integration. Okay. If you have some known data, then you can decide the value of constant of integration. कि किस टाइम पर क्या था टेम्परेचर, तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ लिमिट्स लगाते हैं, यहाँ ये इसका dt बाय डी, इसको आप इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन dt आएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 आएगा। तो आपने कौन सा रूल यहाँ लगाया, इफ यू हैव ए फंक्शन, एनी फंक्शन in the denominator and its derivative in the numerator, then integration of such a function is log of the function. Is any function? Function means a term which depends upon, y depends upon x. So here temperature depends upon time. Okay. तो यहाँ नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ द फंक्शन, ये फार्मूला यहाँ लगाया गया है। नीचे फंक्शन है टी माइनस टी नॉट, ये एफ एक्स है। ओके, टाइम डिपेंडेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, टी का डिफरेंशिएशन डी टी और टी जीरो का, ये कॉन्स्टेंट है इसका जीरो। ओके, तो ये रूल यहाँ लगता है, तो इसलिए जो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा दैट इज लॉग ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ये है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स डैश है। ओके, तो ये हमारा ये आ गया। अगर आप यहाँ एंटी लॉग लेते हैं तो टी माइनस टी नॉट जो आएगा दैट विल बी ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। आप लॉग की डेफिनेशन जानते हैं, लॉग ऑफ ए नंबर इज द पावर, log of any number is the power to which this base is raised. If this base is raised to this power, you will get the number. तो e base power ये कर दो तो ये नंबर के बराबर आएगा। लॉग की डेफिनेशन, log of a number is the power to which base is raised so as to get the number. तो इस बेस, दिस बेस इज रेस्ड टू दिस पावर, क्योंकि लॉग जो है वो पावर है, लॉग ऑफ ए नंबर इज पावर टू विच दिस बेस इज रेस्ड सो एज टू गेट द नंबर। तो ई रेस्ट पर इतना कर दो तो ये नंबर आ जाएगा जिसका आपने लॉग लिया। ओके, तो आप ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, प्लस ई रेस्ट पर माइनस के टी प्लस सी। Okay, now here there are two variables, एक ये टेम्परेचर और ये टाइम। If you plot a graph, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो लॉ दिया वो यही था ना, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन
the hot body and the surrounding. T is the temperature of hot body. At any time T, इस टाइम पे इतना टेम्परेचर था हार्ट बॉडी का, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट है। वो डिपेंड करता है कि जो हॉट बॉडी कैसी है, कैसी मीन्स उसकी नेचर क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है। वो जल्दी हीट लूज करेगी या धीरे धीरे। जैसे ज़मीन बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, पानी बहुत देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। अब पानी की जो रेट ऑफ कूलिंग है और जो ज़मीन की रेट ऑफ कूलिंग है डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है। ठीक है ना, सेम टेम्परेचर पे आप दूध ले लो, सेम टेम्परेचर पे पानी ले लो, दे आर टू डिफरेंट लिक्विड्स। ओके, और अंडर सिमिलर एनवायरनमेंट सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रख दो, फिर उनका रेट ऑफ कूलिंग कंपेयर करो तो यू विल फाइंड डिफरेंट। हाँ जी, सर पानी जल्दी उबल जाएगा। पानी देर से ठंडा होगा, देर से गर्म होगा। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो भगवान ने अच्छा किया कि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, नहीं तो थोड़ी सी ठंड पड़े तो पानी फ्रीज होकर बर्फ बन जाता, और थोड़ी सी गर्मी पड़े तो स्टीम बन के उड़ जाता, फिर पीने के लिए पानी कहाँ मिलता। नेचर ने जो डिफरेंट लिक्विड को स्पेशल चीज़ें दे रखी हैं, पानी को तो बहुत ही स्पेशल चीज़ें दे रखी है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा इसमें मिलाए बन जाए वैसा। तो ये फ़ायदा उठाया, इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाया जो अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं। पेट्रोल में पानी मिला दो, पता थोड़ी लगेगा पानी पेट्रोल, दूध में मिला दो, ठीक है ना। पानी मिलाते ही हैं, पेट्रोल का दूध में पानी मिलाते हैं। ऐसे दूध में तो मिलाती है, पेट्रोल में मिलाते हैं। हाँ, मिसिबल है कि नहीं ये देखना पड़ता है ना, दोनों लिक्विड मिसिबल है कि नहीं, दोनों मिक्स होते हैं कि नहीं, पेट्रोल में तो मिक्स नहीं। ठीक है ना। आप रूह अफ़ज़ा में मिला दें, कैंपा कोला में मिला दें, ठीक, फंटा में मिला दें, मिला सकते हैं। Yes, sir। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबको डिजॉल्व कर देता। फिर स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा कर दी, ठीक है ना। और फिर आपको बताया कि पानी तो पागल हो जाता है बिटवीन 0 to 4 डिग्री, उनका बेबी अब नॉर्मल हो जाता है, ये कंटैक्ट करने लग जाता है। बाकी एक्सपैंड करते हैं ऑन हीटिंग और पानी 0 to 4 में कंटैक्ट करने लग जाता है, इसका नर्वस बिहेवियर है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना है कि आप दो डिफरेंट लिक्विड ले रहे हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ले रहे हैं, तो एक दूध ले लिया, उधर पानी ले लिया, सेम टेम्परेचर 75 पे ले लिया। अगर पानी 75 से 65 पे आया तो मान लो 5 मिनट लगे हैं, और दूध 75 से 65 आए तो हो सकता है कम टाइम में कूल हो जाए। रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ओके, तो न्यूटन ने तो ये ला दे दिया कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट लिक्विड एंड द सराउंडिंग। ओके, फिर हमने जब ये एग्जांपल दिया कि मान लो आपने इस बेकर में कोई लिक्विड ले लिया, हाई टेम्परेचर 75 पे थर्मामीटर लगा दिया, टाइम इंटरवल डिसाइड किया कि आफ्टर एवरी 5 मिनट हम देखेंगे कि कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है, कहाँ से कहाँ। ओके, तो 5 मिनट का टाइम इंटरवल डिसाइड कर लिया, तो देखा कि टेम्परेचर 75 to 65 हो गया। अब मान लो आप 65 से मान लो 55 डिग्री टेम्परेचर फॉल करता है, तो क्या इसमें भी ये 5 मिनट ही लगेंगे? नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो जाएगा बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है, ठीक है ना। जब आप इनका मीन लेंगे, इधर इनका मीन लिया था, अब इनका मीन लेंगे 60। हाँ जी सर, टाइम कम लगेगा? नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहले सराउंडिंग जो कूलिंग है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो कूलिंग फास्ट होएगी, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सराउंडिंग के साथ मान लीजिए टेम्परेचर इसका 55 की जगह 30 हो गया, सराउंडिंग का भी 30 आ रही, ये हॉट लिक्विड का भी 30 हो गया, फिर तो हीट लूज ही नहीं करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, रेट ऑफ कूलिंग 0 हो जाएगा। सेम टाइम इंटरवल में सेम फॉल इन टेम्परेचर नहीं होगा, चाहे लिक्विड सेम है, सराउंडिंग सेम है,
टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड करता है रेट ऑफ कूलिंग को। गॉट माय पॉइंट? तो ये एक रिलेशन आ गया जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, मैथमेटिकल रिलेशन आ गया कि ये टेम्परेचर एट दिस टाइम, इस टाइम पे इतना टेम्परेचर है। कि प्लॉट ए ग्राफ, यहाँ अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आप सोच रहे, कैसा ग्राफ आना चाहिए बताओ? फंक्शन कैसा है? यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, सारे फंक्शन बताए ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेज टू द पावर। ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट है सराउंडिंग का, यहाँ फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। ओके, नंबर 1। दूसरा आप देखें वेरिएबल कौन है, इधर आपने टाइम ले लिया, इधर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ हॉट लिक्विड जिसकी कूलिंग हो रही है, ये वाला ठीक है। ओके, नो अब यहाँ टाइम इंटरवल आप डिसाइड कर लो और इधर टेम्परेचर। when T is 0, बिगनिंग में जब आपको लिक्विड दिया गया, बिगनिंग में हॉट था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने हीट लूज करनी शुरू करी, कूलिंग शुरू हो गई, फिर रेट ऑफ कूलिंग डिसाइड किया, तो ये रिलेशन आ गया। अब आप ये देखो when T is 0, मान लीजिए अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप मान लो नहीं लेते, 0 ले लेते हैं, तो फिर e रेज़ टू द पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। तो ये जो t है वो इज इक्वल टू t नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। या t माइनस टी नॉट इधर ले लें, टेम्परेचर डिफरेंस ले लें। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं से, और उसके बाद धीरे पहले देखो स्लोप ज़्यादा होगा, फिर स्लोप कम हो जाएगा। इस एरिया में कि ग्राफ जल्दी गिरा है, यहाँ जो स्लोप है, स्लोप मीन्स dt बाई dt, इस जो स्लोप है यही रेट ऑफ कूलिंग है, स्लोप ऑफ t वर्सेस t ग्राफ, dy बाई dx स्लोप होता है ना। तो ये y है, ये x है, इधर टाइम है। अब फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में यहाँ क्या देख रहे हैं कि ग्राफ यहाँ स्टीपर है, स्टीपर मीन्स यहाँ कूलिंग फास्ट है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है, हॉट लिक्विड हीट लूज कर रहा है, उसका टेम्परेचर गिर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है ना। कहाँ 30 और 75 का डिफरेंस, और कहाँ लिक्विड 65 पे आ गया, फिर सराउंडिंग का 30 है। मतलब वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स है, और लिक्विड का जो टेम्परेचर है, अगर लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होगा सराउंडिंग से उतनी जल्दी ठंडा होगा, उतनी जल्दी कूलिंग होगी। और सराउंडिंग का और लिक्विड का टेम्परेचर अगर सेम है, डिफरेंस है ही नहीं, तो वो कूलिंग क्यों करेगा? सेम टेम्परेचर ही होगा दोनों का। बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू लूज हीट ओनली व्हेन द बॉडी फाइंड्स दैट सराउंडिंग इज एट ए लो टेम्परेचर, क्योंकि जो हीट इज टू गो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लो टेम्परेचर, द फ्लो ऑफ हीट रीजन इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, अब ना थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, कई इक्विलिब्रियम होते हैं। यहाँ हम हीट की बात करें, कूलिंग की बात करें, तो यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम अगर हो गया, क्या मतलब बॉडी का टेम्परेचर उतना ही हो गया जितना सराउंडिंग का। अब दो आदमी हाथ में ला रहे हैं और दोनों का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है, हाथ में लाने से तेरी थर्मल इक्विलिब्रियम, नो हीट विल फ्लो, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। तो हमें नहीं लगता कि ये हम गर्म है या जिसको हम शेक हैंड कर रहे हैं वो गर्म है, लेकिन हमारा टेम्परेचर 98.4 है और जिसको हम हाथ शेक कर रहे हैं वो उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फारेनहीट है। हाथ लगाते कहीं यार तुम गर्म हो, तुम्हें बुखार है, ठीक है ना। अभी आप कोई मेरे से शेक हैंड करो, बोलो क्या ऑब्जर्वेशन है? सर गर्म आपका, मैं गर्म, अरे मैं लाजपत राय का चेला हूँ। मेरा ठंडे हैं।
मैं गर्म हूँ, मेरा खून गर्म है, मेरा टेम्परेचर 98.4 ही है। अभी थर्मोमीटर ले लो और टेम्परेचर माप लो, ठीक है ना। लेकिन इसने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को बुखार है, मैं आप सारा आप गर्म हो, जैसे MBBS का रखा डॉक्टर बना हुआ। सुना कईयों की तासीर गर्म होती है, ठीक है ना। जिससे भी आप मिलो कोई आप गर्म हो, अब टेम्परेचर माप लो 98.4 है, हो सकता है आपका। अच्छा फिर मैंने इसको कह दिया यार तुम गर्म हो, ये गर्म नहीं, गर्म मैं हो गया क्योंकि इसकी हीट मेरे पास आ गई। टेम्परेचर डिफरेंस था ना, टेम्परेचर डिफरेंस था, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करी, आपसे मेरे पास आई, तो मेरे पास हीट आ गई तो मैं गर्म हो जाऊंगा ना। मैं इल्जाम इस पे लगा दूंगा तुम गर्म हो यार। तो कैसी बातें करते हैं, फिजिक्स को ध्यान में रख के आप बात करो, सुना कि नहीं। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे होगी, हीट का फ्लो नहीं होगा, कूलिंग नहीं होगी, ना हीटिंग ना कूलिंग। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो बॉडी ब्रॉड इन कंडक्ट भी दीजिए दो, दो बॉडी का कम्युनिकेशन करा दो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट पक्का फ्लो करेगी, ठीक है ना। दो लिक्विड को कम्युनिकेट करा दो, अगर प्रेशर डिफरेंस होगा, आपने देखा उसमें सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर होता है, लेकिन जो बबल जो है शॉर्टर रेडियस का है उसमें एक्सेस प्रेशर ज़्यादा है, ठीक। तो यही सवाल मैंने पूछा था कि जब दो डिफरेंट बबल और डिफरेंट रेडियाई दे आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, तो आपने क्या कहा था कि जो उनके अंदर एयर है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, आपने बोला शॉर्टर टू हाई, है ना, आपने उल्टा बोला था, उल्टा बोला, हाँ। हायर टू शॉर्टर। हाँ, जो कि जिसका रेडियस कम है, एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो जो शॉर्टर बबल है जिसका साइज कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ से फिर एयर जाएगी, और जो आगे ही बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा क्योंकि उधर ट्रांसफर हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो ग्राफ आया इसको आप स्टडी करिए, न्यूटन द लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑफ hot body and the time. With the passage of time, temperature is falling, body is being cooled because of temperature difference between body and surrounding. Okay, and this graph is according to this equation. Okay, ये ग्राफ will not start from origin, क्योंकि जब t 0 है, ये पोर्शन जो है anything raised to the power 0 1 हो जाता है, तो ये जो t है is equal to t naught होगा। ओके, या आप ये टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर आप T माइनस टी नॉट प्लॉट करते हैं, तो भी ग्राफ की शेप यही रहेगी। T माइनस टी नॉट जो भी होगा 20 तो दिस माइनस दिस ये आ जाएगा, और ये 1 है। ये पूरा 0 नहीं है, T 0 होने पे ये इसकी पास 0 होगी तो ये 1 हो गया, 1 प्लस समथिंग जो भी आएगा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर मैंने बोला ये यहाँ ग्राफ स्टीपर होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इन द बिगनिंग ज़्यादा होने से रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगी, और जो इसका स्लोप होगा इस पोर्शन में, जो स्लोप होगा dt/dt वो ज़्यादा होगा, ग्राफ स्टीपर होगा। और उसके बाद ये स्लोली क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, रेट ऑफ कूलिंग स्लो होती जा रही है, और फिर ये जो ग्राफ है वो ऐसे लेस स्टीपर होता जा रहा है। और फिर एक स्टेज आएगी जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा नहीं, ठीक है ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कूलिंग होगी नहीं, ग्राफ ऐसे पैरेलल चला जाएगा। कर में पॉइंट। तो हमने पहले स्टेटमेंट ली न्यूटन द लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट के rate of cooling directly proportional to temperature difference between the hot body and the surrounding। फिर न्यूटन एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि न्यूटन द लॉ ऑफ जो कूलिंग है ये है dt/dt प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट, और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके,
अब ये 30 डिग्री सेल्सियस या 30 केल्विन, जितना सेल्सियस में डिफरेंस होगा उतना ही केल्विन में डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें भी 273 ऐड करके ये आएगा, तो यहाँ सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी अगर आपने सेल्सियस में लिया तो 273 ऐड करके ही आएगा। सर अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फेल हो जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन है कि टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी अंडर 30 डिग्री। स्मॉल, स्मॉल मीन्स 30 और लेस देन 30, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, so there is a restriction, validity of Newton's law of cooling, the temperature difference between the body and the surrounding should not be more than 30 degree. ठीक है? So, graphical representation or statement of Newton's law of cooling and mathematical form of Newton's law of cooling. No, this can be taken in other ways also. You know, this is also rate of cooling. Okay, dq by dt proportional to temperature difference between body and surrounding. Okay, now the amount of heat lost by the body is equal to mass of the body, specific heat and change in temperature. इसमें कूलिंग है तो फर्स्ट टेम्परेचर T1 विल बी मोर देन, जैसे 75 to 65 कूलिंग हुई है तो T1 75, T2 65. ओके, तो ये डिक्रीज इन टेम्परेचर है. Okay, if you supply, if a body loses very small amount of heat, then there will be small fall in temperature during cooling. Yes, sir. Okay, so you can replace this dq by this. So m into c into dt divided by dt proportional to this. ठीक है, then dt by dt is equal to ये है rate of cooling. So we have replaced dq by mc dt. Then you would transfer this to this side, and after removing this sign of proportionality, applying a constant of proportionality, putting minus sign because there is a decrease in temperature with the passage of time. Okay, तो हमने माइनस लगा दिया कूलिंग के लिए, ये आ गई. अच्छा, फिर वही सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, माइनस के ओवर एम सी इंटू डी टी. इंटीग्रेट on both side, dt over t minus t naught. T minus t naught will be minus k over mc integral dt. Again here it will be log of t minus t naught, natural log. It is minus k over mc into t. Now if you plot a graph between time and log of t minus t naught, we are taking this as a whole as one variable, or a time another variable, k over mc constant. Okay, so this factor depends upon time. Clear? Now what type of graph you expect in this case? पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, अब ये अलजेब्रिक, इधर लॉग है
but we have taken this as a whole as one physical quantity. इसको y मान लिया, ये x है, सर ऐसे हैं? ऐसे नहीं ऐसे रहेगा पहले मतलब नीचे से ऊपर और फिर कूलिंग हो रही है, हीटिंग नहीं हो रही. टेम्परेचर डिफरेंस with the passage of time, with the passage of time ये जो डिफरेंस है कम होता जा रहा है. सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है, ये जो टेम्परेचर है ये गिरता जा रहा है. ओके, ये डिफरेंस कम होता चला जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, एक बात. दूसरा कि हम ये दो वेरिएबल ले रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. This as a whole is directly proportional to t. दोनों की पावर सेम है. इसको मैंने log नहीं लिया. I'm not treating this as a log function. इसको मैंने as a whole जो भी आएगा उसको मैंने y मान लिया और ये t टाइम जो है वो मैंने x मान लिया. अब ये इसको आप ये नहीं कह सकते लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अब अलजेब्रिक फंक्शन है. टू फिजिकल क्वांटिटी सेम पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन. ओके, और ये भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और ये वाला आइटम भी कंटिन्यूसली विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है. इसीलिए ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन वो पैरेलल टू इस नहीं होगा, पैरेलल टू टाइम नहीं होगा. वो तब होता है जब एक दोनों में से एक कांस्टेंट हो. ये तो दोनों वेरिएबल है, तो ग्राफ विल बी टेकिंग दी शेप. ये यहाँ पॉइंट्स आएंगे, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. इसका नेगेटिव स्लोप होगा. अगर इसका स्लोप नहीं तो ये जो एंगल बना रही है ग्राफ विल बी मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा विल बी मोर देन 90. ओके, जो स्लोप होता है दैट इज tan थीटा. स्लोप इज tan थीटा और here थीटा मोर देन 90 है. और तो सर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. यस, तो स्लोप जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऐड शुगर तो सेकंड में tan नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव स्लोप मीन्स विद इंक्रीज ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज कम होती जाएगी. टेम्परेचर तो ये दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ओके, so we started with the rate of cooling. Rate of cooling is how much heat is lost per second. Rate of cooling is also how much is the fall in temperature per second. Okay, so you can take the rate of cooling into different ways. Okay, so you will get two different type of graph. Okay, so here it is a graph between natural log of t minus t naught and time. और आपको पता है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया. Got my point? क्योंकि इसको हमने एज ए होल इस पूरे को y मान लिया, इसको x मान लिया. दोनों की पावर सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, लेकिन इधर माइनस है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आइटम कम हो जाएगी. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों की सेम पावर वेरिएबल की तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. और फिर इसमें जो एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और इसका जो स्लोप होता है tan थीटा, एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस. x एक्सिस में यहाँ टाइम एक्सिस है. समझ में आ गया? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. इस पे जनरली कंपटीशन में सवाल कैसे आते हैं, कैसे सवाल आते हैं? नोट डाउन. लिक्विड Yes. Liquid is being cooled and its temperature falls from 75 degree to 65 degree Celsius in 5 minutes. Temperature falls from 75 degree Celsius to 65 degree Celsius in first 5 minutes.
if temperature of the surrounding is 30 degree Celsius, first type of question, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फर्स्ट टाइप क्या है कि 75 to 65 in 5 minutes, temperature surrounding 30 degree. So how much time liquid will take in cooling from 65 degree to 45 degree Celsius. Okay. You have dt by dt, rate of cooling proportional to temperature difference between body and surrounding. This rate of cooling and proportional to temperature difference between body and surrounding, provided temperature difference is less than or equal to 30 degree. ये condition भी है. Okay. तो dt is the change in temperature, that is T1 minus T2 upon time is equal to minus K. This T will be average temperature. I told you. Temperature is continuously falling with the passage of time. Okay, and this is the temperature of surrounding, which is given 30 degrees Celsius. But this temperature of the hot liquid, okay, at a particular instant of time. तो हमने तो 5 मिनट के बाद रिकॉर्ड किया कि 75 से 65 हो गया 5 मिनट में। तो ये टेम्परेचर 75 था, ये हो गया फाइनल टेम्परेचर 65। तो 75 माइनस 65 टाइम कितना लगा? 5 मिनट्स। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू 165 हो जाएगा। तो 75 प्लस 65 इनका एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सर सर, 60 आएगा। 65 था हाँ जी, सर, T2 65 था। अच्छा ये 65 है, यस सॉरी। ओके, the temperature falls from 75 to 65 in 5 minutes. So you can decide the rate of cooling. ये कितना टेम्परेचर फॉल हुआ कितने टाइम में? 2 डिग्री तो ये तो रेट ऑफ कूलिंग है। अब न्यूटन कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट लिक्विड एंड सराउंडिंग। अब टेम्परेचर हॉट लिक्विड का कौन सा लेना है? एवरेज ऑफ 75 एंड 65। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स है 30 है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ के। यस सर। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनली आ जाएगा ना। Yes. के का वैल्यू कितना आया? अब यहाँ 10/2 2 आ जाएगा सर। इधर 2 आ गया। इधर 2 आ गया है ना, 2। अब ये आइटम कितनी है? ये हो गया 140, 40 आएगा। ये 140 over 2, ओके 70 माइनस 30 40। तो 40 को इधर ले आओ। सर के माइनस में Minus sign should indicate that there is a cooling, there is a fall in temperature. Otherwise, K is a constant. Constant is never negative. Remember. Okay. Forget minus sign. Minus sign only gives an idea that temperature is falling with the passage of time. There is a cooling. Newton law is related to cooling only, not heating. Okay. Liquids कैसे cool होते हैं? How quickly or how slow? तो यही है रेट ऑफ कूलिंग। तो वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूटन ने बता दिया, रूल बता दिया, ग्राफिकली देख लिया, मैथमेटिकली देख लिया, लिंग्विस्टिकली देख लिया, उसकी लैंग्वेज भी देख ली
हाँ जी, और ये हमारे पास ये रिलेशन है, स्ट्रेट वे रिलेशन है, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग, ये हमने यहाँ यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ ये चेंज इन टेम्परेचर है जो कि 75 to 65 हुआ है। ओके, जनरली हम क्या लेते हैं, चेंज कैसे लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब हम ये फाइनल 65 लेंगे, इनिशियल 75 लेंगे, तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कट भी जाएगा, कि ये तो आपको पॉजिटिव ही देगा। यस सर। जनरली चेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी आइटम में चेंज निकालो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालो, चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और जब फाइनल तो कम है एज कम्पेयर टू इनिशियल, डिफरेंस आएगा नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए वो माइनस की बात आप भूल जाओ, ये तो पॉजिटिव ही होगा। ये आ गया 2/40। अब मुझे बता सकते हो कि के का यूनिट क्या होगा। देखो ये टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर है, सर कांस्टेंट है? सर सेल्सियस, No unit. सर सेल्सियस, सेल्सियस सर यूनिटलेस सर कांस्टेंट है तो के तो कांस्टेंट जरूरी नहीं है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है। सर डायमेंशनलेस तो हो सकता है। सर फ़ारेनहाइट होएगा, हैं? फ़ारेनहाइट होएगा इसमें से। क्यों सर, आप ये देखिए इधर न्यूमरेटर में टेम्परेचर है, ऊपर इधर तो Celsius में है। पूरी साइड टेम्परेचर है, हाँ जी सर। तो टेम्परेचर तो सेम यूनिट है, कट जाएंगे, लेकिन नीचे तो टाइम है, सेकंड में मिनट में दिया है, 5 मिनट है, मिनट है ये सर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो ये आ जाएगा इतनी वैल्यू पर मिनट। ओके, यार यू नो मेथड ऑफ डायमेंशन, आप यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम ए गिवन रिलेशन कि कौन सी क्वांटिटी का क्या डायमेंशन और क्या सर वो यूनिट। टीटी है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगता है दोनों टेम्परेचर ही है, ये वो कट जाएंगे। इतना कुछ समझाने के बाद फिर आप डिफरेंशिएट करो ना कि कैपिटल टी क्या है और स्मॉल टी क्या है। वो टाइम है, हमने ग्राफिकली भी बताया, लिंग्विस्टिकली भी बताया और मैथमेटिकली भी बताया कि ये स्मॉल टी टाइम है और कैपिटल टी टेम्परेचर है, और टेम्परेचर इज फॉलिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। दो फिजिकल क्वांटिटी का झगड़ा है, टाइम एंड टेम्परेचर, और उस रूल दे दिया न्यूटन ने, रेट ऑफ कूलिंग रिलेशन ये आ गया, यस ये हमने रिलेशन लगा दिया। अब यहाँ ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये भी चेंज इन टेम्परेचर है, बोलो, तो सिर्फ नीचे टाइम बचा ना, ठीक है? ठीक है, तो इसलिए टाइम हमने मिनट में लिया है, तो 2/40 मीन्स 1/20.05 पर मिनट की वैल्यू आ गई। पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हमारा क्वेश्चन था हाउ मच लिक्विड विल टेक इन कूलिंग फ्रॉम 65 to 45। ओके, अगेन अप्लाई दिस रिलेशन, dt by dt is equal to minus a t minus t1। Okay, now this dt is change in temperature, वो 65 to 45, 65 minus 45। अब ये टाइम हमने निकालना है, how much time। ओके, नीचे ये जो टाइम है ये हमने निकालना है, and we have got the value of k, k will remain same in same liquid है, same surrounding है, ये सर निकाल लेंगे। ओके, Yes. तो ये k 1/20 आ गया, and this t naught is 30 again, but this t is average of this and this, यस सर। तो तो सर कितना है, 65 65 plus 45 divided by 2। सर 110 सर 55 आएगा। 55 minus 30 सर minus 30, 25 This is 110 divided by 2, सर 15 आएगा, 15 आएगा, 55 minus 30, 55 minus सर 15 आएगा, 15 25। 20 मेरी बात चलता है। So this item is 25, 25 by 20, this is 20 by time, okay, cross multiply, 25 into time interval, that is 20 by 20। 15 आएगा ना सर, नहीं 15 तो नहीं आएगा, हाँ 16 अब इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड्स, मिनट मिनट जो के का यूनिट पर मिनट है, और वही पर मिनट वाला के हमने यहाँ यूज किया, Yes, sir. तो सेकंड कैसे बन गया,
यस सर इससे वो मिनट ही बनेगा। फिर टाइम की यूनिट है ना। आप यहाँ से अपने घर जाओगे तो आप राहुल के कोई शायम थोड़ी बन जाओगे। चेंज ऑफ प्लेस तो कांस्टेंट ही हो। यस सर। यस सर छुट्टी पे कर तो टाइम हमने यहाँ पहले केस में मिनट्स में लिया, तो सेकंड में जो टाइम निकाला गया है वो भी मिनट्स में ही निकलेगा, क्योंकि जो के की वैल्यू आपने यहाँ निकाली और इसमें यूज किया है वो ये है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? एक तो क्वेश्चन ये आ गया कि हाउ मच टाइम, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, नोट कर लो। सर वो इसने गलती से बोल दिया। ठीक। यस सर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बाद में भूल जाए। सेकंड में क्या पूछेगा, वो क्या पूछ सकता है? सर। पहले में टाइम निकाला ना, हाँ सेकंड में वो पूछेगा कि टाइम में टेम्परेचर अगले 5 मिनट्स में, कितना टेम्परेचर नेक्स्ट 5 मिनट्स में, यस सर, हाँ जी, टेम्परेचर कितना गिर जाएगा? कितना टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। या यहाँ तक रुक सकता है कि आप सेकंड पार्ट दे ही ना, फर्स्ट पार्ट से पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहले पार्ट ने के की वैल्यू दी ना, यस सर और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में के की वैल्यू यूज करनी पड़ी। यस सर यस सर। ओके, अब ये कह रहा है कि इतने से इतना गिर गया 5 मिनट्स में, तो अब यहाँ 65 to 45 में कितना टाइम लगेगा वो हमने टाइम निकालेगा। लेकिन अब वो टाइम नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम दे दिया उसने, नेक्स्ट 5 मिनट में टेम्परेचर कितना फॉल होगा? कितना फॉल हो जाएगा। यस सर। चेंज इन टेम्परेचर पूछा, ये चीज पूछी है, ये दिया 5 मिनट, ये आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया, ठीक है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको पता है, यहाँ आपको मीन टेम्परेचर निकालना है, क्लियर ठीक है। कर लोगे? यस सर कर लीजिए। चलो।